Namaste, Guruji. Jai Guruji Maharaj. On behalf of Vasan Uncle and multilingual team, I would like to thank Guruji Maharaj for the beautiful book reading we have been doing. Guruji's book written by Rol Chelibendra Uncle. Thank you so much. And in today's session, we would be having Rol Chelibendra Uncle, Kiran Sood Auntie, and Nikki Malhotra Auntie. Before we start the session, I would just request all the speakers to kindly please open their cameras and would like to give a brief description. Dr. Ankita, usually known as Nikki to friends, relations and Sangat, is a professional sports and orthopedics physiotherapist, mental health and golf consultant. Nikki came to Guruji's Sharan when she was in school and Guruji was in Defence Colony, Jalandhar. Since then, she is a part of Guruji's Sangat. Kiran Sood Auntie came to Guruji's Sharan when Guruji was in Jalandhar in 1995. She had the blessings to render seva to Guruji and Guruji's Sangat at Chandigarh and Empire Estate. Kiran and family had the blessings to host Guruji as chief guest for inauguration of their fertilizer plant at Udaipur, Rajasthan in April 1998. Guruji also spent considerable period of time in their residence at Chandigarh before he shifted from Chandigarh to Empire Estate. Introduction of the author, Dr. Chebelendra Rol, author of the book Guruji Life and Spiritualism, was called Rahul by Guruji. Rol uncle had darshan of Guruji during his Jalandhar days. He is a retired civil servant and presently member, Central Administrative Tribunal, Delhi. Without wasting a further ado, we would like to start the session with Guruji's blessings. Jai Guruji Maharaj. Over to you, Kiran Soodji. Jai Guruji. Can Jai you Guruji. listen me? Can you listen me? Jai Guruji. Yes, Auntie, you're audible. You're audible. Okay. शुक्राना मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादास टीम, आज शायद वासन अंकल आए नहीं हैं तो शायद उनकी जगह आप आज एंकर कर रही हैं. सो वेलकम टू गुरुजी संगत, global sangat I should say. So today my job has been assigned to read Blender book, Guruji's Life and Spiritualism. It's I have gone through the book, not exactly 100%, but most of the book, most of the chapters, and I would like to add a few words about the book. The way Rol uncle has, given the elaborate and क्या बोलना चाहिए कि थॉरो गुरुजी के बारे में उन्होंने इतना रिसर्च कैसे किया, कैसे इतना उन्होंने मतलब मटेरियल गुरुजी के बारे में इकट्ठा किया, कितनी एफर्ट लगाई मैं नहीं जानती, बट द वे इट हैज बीन रिटन इट्स कमेंडेबल. थैंक यू सो मच रॉल अंकल. गुरुजी आपको राहुल अंकल बोलते थे पर हमारे रॉल अंकल हैं. मैं रॉल अंकल को चंडीगढ़ टाइम से जानती हूँ. मैं भी चंडीगढ़ से हूँ. Right now I am in Delhi, but I was in Chandigarh when I met Guruji, but Guruji was in Jalandhar. So I met Guruji in Jalandhar in 1995. थोड़ा सा अगर मैं अपनी बैकग्राउंड दूं तो I think so it will be easier for the संगत to understand कि हमको गुरुजी ने कैसे अपने साथ जोड़ा तो उनको तो सबका पता था दुनिया में कौन कहाँ बैठा हुआ है. सिर्फ हमको नहीं पता था कि इस दुनिया में साक्षात शिव महादेव, देवों के देव आप आके विराजमान हैं. वो हमको शायद
बहुत देर बाद पता लगा, या उन्होंने पता ही नहीं लगने दिया। मैं जब उनको मिली तो थोड़ा सा मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊंगी। मैं थोड़ा, सभी हम लोग थे शायद थोड़े रिजिड कि ऐसे गुरु के पास नहीं जाना ये वो, बट गुरु जी की इच्छा थी, उनकी ब्लेसिंग थी, तो हम पहुंच भी गए। उन्होंने हमारा सरनेम भी चेंज किया, उन्होंने हमारा प्रोफेशन चेंज कर दिया, उन्होंने मेरा बर्थडे चेंज कर दिया। सो हमारा एक किस्म का शायद पूरा जो पिछले जन्मों के कर्म थे वो काट रहे थे, सबके काट रहे हैं, आपके भी हमारे सारी संगत के। तो ऐसे ही रॉल अंकल के ऊपर गुरु जी की बहुत ज्यादा कृपा रही। मैं जब देखती थी, हमेशा मैं तो हमेशा बैकग्राउंड में रही, पर रॉल अंकल गुरु जी के साथ 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 हर जगह होते थे। और गुरु जी क्योंकि सारी संगत को एक फैमिली उन्होंने बना दिया था, तो हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली आपस में बैठ के इंटरेक्शन होती थी, उर्वशी आंटी के साथ, रॉल अंकल के साथ। तो वहाँ कोई भेदभाव तो था नहीं कि हम बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, रॉल अंकल सिविल सर्विसेज हैं, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ, पर वहाँ सब गुरु जी की संगत थी। जैसे गुरु जी के जो मेरे को आज असाइन किया गया, दिस पेजेस, दिस इज रिगार्डिंग गुरु जी लंगर सेवा। तो मैं लंगर सेवा पे ही अपना फोकस रखूंगी ज्यादा। लंगर सेवा में जो इन्होंने लिखा है डॉक्टर शबलंदर रॉल जी ने, कि I would like to read a few lines and then I explain from my point of view and add a little bit also. He writes, it was a pleasure and privilege for the devotees to perform Langar Seva. Groups of Sangat or an individual Sangat would be given the task of preparing the Langar. Places like Jalandhar Mandar, General Huza's residence in Panchkula, or even Empire State were too small to have facilities to prepare langar for the ever increasing Sangat. Hence, the chosen few would be instructed to prepare langar at their residence. So he writes, for Empire State, langar used to be prepared in the kitchen facility of Bade Mandar. Sometimes a portion of chapati making would be carried out in the kitchen of the place Guruji was staying, depending upon the requirement of the place. No requirement in Jalandhar. It was Preeti auntie or Bhatia uncle who used to prepare langar at their house and bring it to the mandir at Defence Colony to be served to the Sangha. Now this is talking about Jalandhar. Jalandhar was Guruji stayed in a it still is Guruji's mandir in Jalandhar. आई थिंक सो गुरु जी की जो सिस्टर हैं वो उनको मैनेज कर रही हैं। वहां से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं, वहीं से मेरे को ये लंगर का बारे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। मैं जब जलंधर मंदिर जाने लगी तो मेरे को नहीं पता था कहाँ से लंगर आता है। चाय जरूर वहां पे अंदर किचन में बनती थी, तो उसकी कभी किसी की ड्यूटी लगती थी, कभी कोई, पर हमको ये पता है हम अंदर बैठे होते थे, हमको जाते ही जल प्रसाद किसी मिल जाता था, चाय मिल जानी। और शायद अगर कोई ज्यादा देर बैठा हुआ तो हर घंटे बाद चाय आ जानी, या गुरु जी की मर्जी होनी तो एक कोई 3 गिलास पिला देना। सो दिस वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग। इसका हम कभी नहीं सोच पाते थे कि इसको अगर 2 गिलास मिले हैं उसको एक मिला है। सिमिलरली इट वेंट ऑन लाइक इन एम्पायर स्टेट, कि किसी को 4 बार चाय मिली है, किसी को 4 हाथ से कई बार गुरुजी अच्छा जलंधर मंदिर में मैंने बहुत बार देखा गुरुजी अपने हाथ से ऐसे चपाती देते थे। ही टू कैरी ए बास्केट, सारा लंगर सर्व हो जाता था, बास्केट ही टू कैरी और अपने हाथ से ऐसे देते थे। और हम देखते रहते थे कि गुरु जी को तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पूरीज और चपातीज मिली हैं, पर वो देते जा रहे हैं और वो खत्म ही नहीं हो रही। वो तभी खत्म होती थी जब गुरु जी चाहते थे। तो ये चीजें हम देख रहे थे पर हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन कर सकता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द बुक, इसमें उन्होंने लिखा इन जलंधर इट वाज प्रीति आंटी और भाटिया अंकल को मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कौन थे, या मैं शायद बाय फेस जानती होंगी, उस टाइम मैं भी न्यू थी। प्रीति आंटी के तो ऐसे था कि जैसे मैं चंडीगढ़ से जाती थी, मैं चंडीगढ़ से जाती थी गुरु जी के मंदिर में
होना, तो शाम को गुरुजी ने कुछ संगत को उठा के प्रीति आंटी के घर ले जाते थे सूप पिलाने के लिए। ठीक है, तो सूप पिलाने के लिए ले जाते थे 7 10। बार मैं भी चंडीगढ़ से गई होती थी, तो मैंने भी कई बार, मेरे को भी आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉयिंग सूप विद गुरुजी। इनफैक्ट जब गुरुजी जलंधर से सॉरी पंचकूला शिफ्ट किए जनरल हुजा आंटी के घर में, तो वो जो ड्यूटी थी सूप बनाने की या इवन गुरुजी का पर्सनल लंगर बनाने की, वो गुरुजी ने हमारी लगा दी, हमारी फैमिली की। और पूरे दिन का खाना बना के गुरुजी को, अब मैं तो नहीं बोलना चाहिए गुरुजी के लिए, मैं वर्ड बोलना इस शोज एंड ईगो, बट गुरुजी ने ये हमको सेवा दी। और गुरुजी की जो संगत आती थी बाहर से, उनको हमारे गुरुजी के जो हमारा चंडीगढ़ रेजिडेंस यहाँ बाहर गुरुजी अब खुद शिफ्ट भी हो गए दिल्ली, बट अब जब कैसे थोड़ा सा मैं, यस, गुरुजी पंचकूला में थे, तो लंगर हमारे गुरुजी का लंगर पर्सनल, हमारी ड्यूटी लगी मेरी फैमिली की, और मैं सवेरे 9 बजे बना के पूरे दिन का लेके जाती थी। पर गुरुजी जो संगत बाहर से आती थी, उनको हमारे वहां भेज देते थे नाइट स्टे के लिए। कोई 10 दिन रह रहा है, कोई 5 दिन रह रहा है, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी संगत, जो गुरुजी की वीआईपी संगत जिनको हम बोलते थे, जिनको प्यार तो वो सबको ही करते हैं, पर जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उनको हमारे सेक्टर 21 वाले रेजिडेंस में भेज देते थे, और घरों में भी भेजते थे। but I'm just talking about my, not my place. Guruji used to call गुरुआंदा गेस्ट हाउस, हमारे जो घर में संगत को ठहराते थे उसको बोलते थे गुरुओं का गेस्ट हाउस। तो गुरुजी का जो पर्सनल लंगर होता था, बना के सुबह लेके 9 बजे पहुंचना होता था, और पूरा दिन का सूप, सैलेड्स, सैलेड्स तो हम जाके कट करते थे, और खाना दोपहर का, शाम का, उसमें गुरुजी की बड़ी फेवरेट चीजें होती थी। तो पर वो जो सारा कुछ सिखाया मेरे को, वो प्रीति आंटी ने, सूप बनाने मेरे को प्रीति आंटी ने सिखाए, क्योंकि वह जलंधर में वो बनाती थी, चंडीगढ़ में आके पंचकूला जब आए तो मेरी ड्यूटी लगी, तो मैंने सारा वो रेसिपीज उनसे सीखी। सो माय पर्सनल थैंक्स टू प्रीति आंटी, जिन्होंने मेरे को, या गुरुजी का थैंक्स तो है ही है कि उन्होंने ये ड्यूटी मेरे को दी। अब मैं थोड़ा सा अगेन कमिंग टू द बुक, अब चंडीगढ़ में द राइटर राइट्स ही इज मेंशन विमल कपूर अंकल फॉर पंचकूला एंड सेक्टर 33 चंडीगढ़। इट वाज विमल कपूर who would prepare the langar at his house and bring it to the sangat. Now I, now I come to विमल कपूर। मैं विमल कपूर को जलंधर में जब गुरुजी थे तो नहीं मिली, या शायद मिली, पर मैं, मेरी उनकी ऐसे 1 to 1 इंटरेक्शन नहीं हो पाई। मेरी कैसे इंटरेक्शन हुई, जब गुरुजी पंचकूला में शिफ्ट हो गए, तो ही इज टू सेंड विमल कपूर अंकल टू माय प्लेस इन सेक्टर 21 फॉर ऑड जॉब्स। और साथ ही उनको बोल देते थे, उनको बोलना कि आंटी को बोलना, मत बताना कि मैं पंचकूला में हूँ, बोलना कि मैं जलंधर में हूँ, और आपका ये गुरुजी ने ये सेवा दी है, आप ये कर दो। एंड मैं वो कर देती थी, एंड आई टू फॉरगेट, ऑल्दो आई हैड एन इंक्लिनेशन कि गुरुजी चंडीगढ़ में ही है, बट क्योंकि आज्ञा नहीं थी, तो ना मैंने कभी अपने मुंह से कुछ बोला, ना मैंने उनसे उनको कभी पूछा। तो गुरुजी आए शायद, क्योंकि 7 जुलाई जो थी 1995 की बात कर रही हूँ, 7 जुलाई was celebrated in Jalandhar, that I attended the function, and 15th of August he called me to Panchkula. अब 7 जुलाई और 15 अगस्त के बीच में किसी दिन वो जलंधर से पंचकूला शिफ्ट हुए। I don't know the date because I was not told, I was not allowed to meet him, I was not allowed to talk about it, him or inquire. So this was the period. 15 अगस्त को फिर उन्होंने अपने एक दिन फोन करके मेरे को और अंकल को अपने पंचकूला जनरल हुजा आंटी के घर में बुलाया। उस दिन के बाद फिर हमारी गुरुजी ने जो सेवा शुरू करी, हमारे
भाग्य थे, कोई बहुत अच्छे कर्म थे जो ये सेवा मिली कि गुरु जी का पर्सनल लंगर जो था वो हमारे घर से तैयार होके जाता था। और मेरे ख्याल है जिंदगी का शायद वो बेस्ट पीरियड था जो मैं सोचती हूँ। बड़े भाग्य से मिला, बड़े अच्छे कर्म थे, या तो पुराने कर्म अच्छे थे या वो आगे के सुधारे थे, या दोनों। Anyway, now coming back to the book, now the writer writes, I had the privilege of serving Langar to the Sangat at Empire State. We had a team of consisting of Sangat like Colonel Joshi, Dr. S.C. Sharma, and Singla uncle who used to serve the Langar brought from Bade Mandar. अब मैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे नाम जो ऑथर ने लिखे हैं जो आज मतलब शायद बहुत संगत को पता नहीं है, तो आई थिंक सो गुरु जी ने मेरे को आज्ञा दी है या परमिशन दी है, या मैं अपनी कुछ अथॉरिटी यूज कर रही हूँ। डॉक्टर S.C. शर्मा, S.C. शर्मा का डॉक्टर शबलिंदर रॉल जी ने लिखा है इन एम्पायर स्टेट। इनको मैं जानती हूँ अपने चंडीगढ़ टाइम से। और जब गुरु जी चंडीगढ़ में थे, पंचकूला में या इवन सेक्टर 33 में, तो वो डॉक्टर S.C. शर्मा के घर जाते थे। जैसे अभी मैंने बोला कि वो जलंधर में प्रीति आंटी के घर सूप पीने जाते थे, ऐसे ही चंडीगढ़ जब वो आ गए तो डॉक्टर S.C. शर्मा जो ENT स्पेशलिस्ट है, अभी तो खैर मतलब दिल्ली में है, वो बाद में दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी, उस टाइम वो PGI में थे या कोई जनरल हॉस्पिटल, मतलब सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। गुरुजी हमको लेके उनके घर जाते थे चाय पीने के लिए। ये कुछ चीजें मैं अपने आप से ऐड कर रही हूँ, सॉरी रॉल अंकल। उसमें क्या था, बिकॉज बैचलर, उन दिनों भी उनकी शादी नहीं हुई थी S.C. शर्मा की, तो उनका एक छोटा सा फ्लैट था और उसमें छोटी सी किचन थी। छोटी सी किचन जैसे बैचलर किचन होती है, एक चूल्हा रखा हुआ है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चाय का है, गुरुजी ने ले जाना। और भी बीइंग द लेडीज, दो तीन किचन में जाके चाय बना लेती थी कि, पर गुरुजी उनके घर जाते थे, तो ही हैड द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग गुरुजी's टी एट हिज प्लेस। तो ये सारे ब्लेस्ड लोग हैं, सारी दुनिया ब्लेस्ड है। सारी दुनिया जो गुरुजी को मिले, जो नहीं भी मिले, वो सारे ब्लेस्ड है। जो ये सत्संग सुन रहे हैं या जो ये बुक पढ़ेंगे, वो सारे ब्लेस्ड होने वाले हैं, बिकॉज गुरु जी ने हर किसी का टाइम, हर किसी का तरीका मिलने का, उनको ब्लेस करने का अलग अलग रखा हुआ है। तो ये डॉक्टर S.C. शर्मा के बारे में मैंने अभी बताया। और नाउ वी कम टू, नाउ द वेन्यू शिफ्ट टू सेक्टर 33 में उन्होंने लिखा है कि लाइक ये सारे मतलब सेक्टर 33 में भी विमल कपूर अंकल ही खाना उनके घर से आता था। एक उनके बड़े ब्रदर थे जिनको सब ताया जी बोलते थे, क्योंकि विमल कपूर के बच्चे ताया जी बोलते थे, तो सब ताया जी बोलते थे। गुरु जी भी ताया जी बोलते थे, उनकी वाइफ को भी ताई जी बोलते थे सब। तो ये उस टाइम मेरे को याद है, सेक्टर 33 में खाना जो था वो उनके घर से बन के आ रहा था। अब ये कितने ब्लेस्ड लोग हो सकते हैं जो संगत का खाना बना के लेके जाते थे, जो सर्व करते हैं, जो सामने आते हैं, उनको तो सब देख रहे होते हैं। जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स जो सेवा करते हैं, गुरु जी ने उनको भी बहुत ज्यादा ब्लेस किया, रादर ज्यादा ब्लेस किया कि, क्योंकि गुरु जी को, गुरु जी का हमेशा एक कहना था कि अगर राइट हैंड कुछ करता है तो लेफ्ट को पता नहीं होना चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने गुरु जी की इतनी सेवा करी। बहुत लोगों ने बहुत सेवा करी, संगत की करी, गुरु जी की करी। तो आज भी लोग कितना कर रहे हैं, हम तो खैर अब रिटायर हो गए, हम तो यही कर सकते हैं जो कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, अब तो इतनी संगत बढ़ गई है, शायद शायद हम कर भी ना पाते। Anyway, now going back again to the book, the writer writes on a couple occasions he says, due to office engagements or other exigencies, I would be held up and could not reach Empire State in time for serving Langar. Guruji would innocently ask other members about my arrival.
He's talking to himself. On a couple of occasions, he would delay the langar so that I could reach in time for the langar seva. After serving langar to all the sangat, the sevadars engaged for langar and the domestic help would sit together and have their langar. Most of the times, Guruji would take his frugal meals during that time. अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो अपना जो मेरे को गुरुजी ने दिखाया या मैं थोड़ी बहुत अपनी समझ के अनुसार देख रही थी, तो इसमें मैं कुछ ऐड करूंगी. गुरुजी यूज्ड टू टेक वेरी लिटिल, और उसमें गुरुजी को एक बहुत मतलब उनको कह लो कि भगवान, साक्षात भगवान, जिन्होंने पहले सारी अपनी संगत का सबका ध्यान रखना, उसके बाद उन्होंने खाना खाना. इसमें मैं आपको एक जलंधर टाइम की बात कोट करूंगी बीच में. ये बात है जलंधर टाइम्स की, और कोई एक फंक्शन था, शायद वो वैसाखी का फंक्शन था. तो वैसाखी के फंक्शन में गुरुजी ने छोटा सा वहाँ एक जो भी मतलब अरेंजमेंट किया हुआ था. तो गुरुजी को मैंने जैसे बोला आदत थी कि वो सबको खिला के बाद में खाते थे. तो जलंधर मंदिर में बैठे हुए थे. जलंधर मंदिर सबको पता है कि वो एक 250-300 गज का एक घर, डुप्ले हाउस, जिसमें गुरुजी के नीचे शायद एक या दो बेडरूम थे, ऊपर एक था, फिर एक छत थी. तो कुछ टेंटिंग वगैरह हुई थी. तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा गुरुजी काफी लेट हो गए, आप भी लंगर खा लो. तो कहते हैं सबने खा लिया. मैं कहा जी हाँ खा लिया. फिर पूछते सबने खा लिया. मैंने कहा जी खा लिया. कहते फिर तीसरी बार पूछते, कहते इधर आ, ऐसे कर, ऊपर जा. ऊपर मीन्स कि नॉट फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. सेकंड फ्लोर एक रूफ थी प्लेन, यहाँ पे मेरे को भेजा. मैं ऊपर गई, वहां पर 3-4 लोग बैठे थे जो शायद टेंट टेंट वाले थे, जिन्होंने टेंट लगाया हुआ था, और उन्होंने लंगर नहीं खाया था. जो मेरा मतलब गुरु जी का मतलब था कि पहले उनको लंगर खिलाओ, पहले उनको खिलाओ, फिर हमने उनको लंगर खिलाया, तो गुरु जी ने लंगर खाया. मतलब उनको ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हुए भी पता था कि 3-4 लोग जो सुबह से सेवा कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने टेंट उतारना है या उतारा है, उन्होंने लंगर नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं. ये हमारे गुरु जी का एक हुक्म था कि मतलब ये जो कम्युनिटी है, चाहे वो सेवादार है, चाहे वो मतलब जिनको हम बोलते हैं कि वो हमारे बाहर से वर्कर्स आए हैं, जो कोई भी काम के लिए, जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारी हेल्प है, हम उनको भी उसी तरह ट्रीट करें जैसे हम बाकी संगत को करते हैं. ये हमारे लिए एक हुक्म था जो आज भी हम ऑब्जर्व करते हैं. और गुरु जी कहते थे इनको कभी लेफ्ट ओवर फूड नहीं देना, इनको भी अपना अपने उसी तरह खाना देना है जैसे आप बाकी संगत को देते हो. ये हमारे गुरु जी का एक इक्वालिटी जो उन्होंने सिखाई कि मेरे उनकी नजर में चाहे कोई कितना भी ऊंचे ओहदे पे है, चाहे वो कोई छोटा सेवादार है, चाहे कोई वर्कर है, चाहे कोई ड्राइवर, चाहे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, उनके लिए वो तो सबको बराबर ट्रीट करते थे. इसका अगर बाद में टाइम हुआ तो शायद मैं एक चीज और आपको बताऊंगी. नो अगेन coming to the book. Now the writer, not that each and every devotee who wants to do Langar Seva is allowed to do so. Guruji used to test the sincerity of purpose and good intention of the devotee before allowing them to undertake such a service. इसका जो मैं समझ पाई हूँ रौलंकर, इसका मतलब था कि हर कोई जो मन से चाहता कि मेरे को लंगर सेवा मिल जाए या कोई भी और सेवा मिल जाए, ऐसे नहीं होता था. गुरुजी पहले देखते थे कि कौन किस मतलब जो कहते हैं हम नियत से, किस भावना से, जिसको भावना बोलते हैं, किस भाव से बना के लाएगा या किस भाव से खिलाएगा. उसमें उसकी कोई ईगो तो नहीं है, उसमें ये तो नहीं है कि घमंड है कि मैं लंगर बना के लेके जा रहा हूँ और मेरे को गुरु जी ने कोई स्पेशल समझा है. तो जैसे ही वो मन में आता था, उस आदमी से या उस आंटी से या उस अंकल से वो सेवा ले ली जाती थी. अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अंकल ने अपनी बुक में लिखा है. उन्होंने एक सुखमनी आंटी का भी कोट किया है कि एक
किसी आंटी ने बोला कि गुरुजी मैं भी लंगर बना के लाऊं, तो गुरुजी ने कहा तेरे को 25 साल लगेंगे इस सेवा में आने के लिए। मीन्स कि अभी तो तेरी नहीं है, अभी तेरा मन साफ नहीं है, या तेरी कमाई साफ नहीं है, या पता नहीं कौन सी आंटी को उन्होंने बोला, मैं नहीं जानती। सो नो पर्सनल कमेंट्स। वे भी गुरुजी के को था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया। हर किसी का के टाइम के हिसाब से उनको सेवा दी जाती थी, अब भी टाइम के हिसाब से दी जाती है। और जैसे ही हम लोग इस चीज का हमारे अंदर गरूर आता है या हमारे अंदर आता है, तो गुरुजी हमको किसी ना किसी तरीके से समझा देते हैं, हमसे सेवा ले ली जाती है, या गुरुजी कोई किसी संगत के थ्रू, किसी शब्द के थ्रू औकात विच रखी, जिसको हम आम सुनते हैं शब्द को, औकात विच रखी। सो मैं अपने आप को सबसे पहले ये समझाती हूँ हर सवेरे उठ के कि कोई भी वर्ड बोलना है, कुछ भी, मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मैं पहले गुरुजी को प्रे करी थी, गुरुजी मेरे मुंह से कोई ऐसा वर्ड मत निकलवा देना जिसमें मेरी कोई ये लगे कि मेरी कोई ईगो है। मैं तो सिर्फ आपने जो सेवा दी हमने वो करी, आगे जो सेवा दोगे वो करेंगे। सो दिस शुड बी द टारगेट। और रॉल अंकल ने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन वेस्टेज ऑफ द ब्लेस्ड लंगर। इसमें द राइटर राइट्स most of the time the langar prepared would be adequate to cater to the sangat present for that particular day. By Guruji's blessings, the amount would be sufficient to serve the sangat. On many occasions, the langar would be surplus. There were devotees who would feel privileged to accept the leftover langar to be eaten by other family members or themselves the next day. अब इसमें मैं इस चीज को थोड़ा एलेबोरेट करना चाहूंगी। बड़ा अच्छा लिखा है रॉल अंकल ने कि हमने भी बहुत साल गुरु जी के साथ निकाले, उनकी कृपा से रात दिन, समटाइम 24 आवर्स उनके साथ रहते थे, पूरी पूरी रात उनके साथ उनके कमरे में भी रहे हम। वो तो चलो मैं बाद में अगर टाइम होगा तो बताऊंगी कि रात को क्या होता था। गुरु जी यहाँ होके पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे होते थे, सिर्फ उनकी बॉडी होती थी, हम कैसे फील करते थे, वो कैसे दिखाते थे, क्या था अगले दिन क्या बताते थे, ये सब बाद की बातें हैं। कम बैक टू दिस पॉइंट जो रॉल अंकल ने लिखा है, हमने कभी आज तक नहीं देखा, हमारे कम से कम सामने कभी नहीं हुआ कि लंगर बना हो, संगत 100 आ गई है, 500 आ गई है, 5000 आ गई है, अब तो खैर 50,000, 5 लाख ये सब होने लग गया। मैं उस टाइम की बात करूंगी जब जिस टाइम जो राइटर हैं वो गुरु जी के बारे में लिख रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि लंगर कम पड़ गया, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। ना किसी के घर जगह कम पड़ी, ना किसी का लंगर कम पड़ा, ना आज कम पड़ता है। हमको नहीं पता ये गुरु जी की कौन सी कैलकुलेशंस होती हैं। इसमें मैं एक चीज जो ऐड करूंगी कि ये बात है एम्पायर स्टेट की। तो गुरु जी ने, हमने किसी दिन, हमने क्या मतलब, जो लोग सेवादार होते थे उन्होंने कहना गुरु जी आज तो बहुत मतलब संगत हो रही है। तो गुरु जी आराम से कूली बैठे होते थे, उनको पता था जितना लंगर बना है वो सफिशिएंट है। और एक और चीज शायद मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, गुरु जी कहते कई बार कम संगत होती थी, गुरु जी ने कहना आज तो बड़े लोग संगत मतलब लंगर खा के गए हैं। हमको ना समझ नहीं आनी कि हम गुरु जी की बातों को समझ नहीं पाते थे, बड़ी देर लगी, या अभी भी पूरी कहाँ समझ आती है, शायद कई जन्म लगेंगे समझ में। वो ऐसे था कि गुरुजी ने बोलना आज बहुत संगत सी, तो हमने सोचना भी, हमको तो उतनी संगत दिखती थी जितनी दिखती थी, 200 है, 250 है, 400, 500। फिर बाद में कभी कभी गुरुजी का मूड होता था तो बताते थे कि ऊपर से देवी देवते भी ये लंगर खाने आते हैं जो यहाँ बनता है। Il primo racconto metà quelli normali da parte, che era Nicky Holiday se Bianchi. सो उसमें ये है कि जो हमको दिख रहे थे लोग लंगर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे थे, गुरुजी के अपने वर्ड्स थे कि देवी देवते भी ऊपर से ये लंगर करने आते हैं जो गुरुजी लंगर ब्लेस करते थे। तो हमको तो पता ही नहीं कितने काउंटलेस लोग कितने ऊपर से
सोल्स आके कितनी अच्छी सोल्स आके लंगर करके जाती थी, तो गुरुजी टू ब्लेस एवरीबॉडी। अब जो राइटर राइट्स, लंगर सर्व्ड इन गुरुजी's दरबार इज ऑलवेज frugal and simple. One dal, one vegetable dish, roti, chutney, and sometimes raita, and sometimes sweet, and something sweet. ये एक गुरुजी ने स्टैंडर्ड एक मेन्यू सेट किया हुआ था, सिंपल खाना। मतलब गुरुजी खुद भी बहुत सिंपल खाते थे, क्योंकि हम तो बनाते थे तो हमको पता था। गुरुजी ने हमेशा कहना एक सब्जी, पर हम कभी एक सब्जी पे नहीं रहते थे। हमको लगता था है अगर अच्छी नहीं बनेगी तो कम से कम गुरुजी दूसरी खा लेंगे। 2 सब्जी 3 सब्जी बनानी, ले जाना है। फिर गुरुजी ने हमने अपनी तरफ से एक बड़ा सा थाल भर के रख देना, तो गुरुजी ने उसको आधा आधा कर लेना, कटोरियां बुला के, या 2-3 लोग अपने साथ बैठा लेने, रोटी के ऊपर दे दे के सबको डिस्ट्रीब्यूट करके खाना। तो ये जिसका जिस दिन जो भाग होता था उनको गुरुजी अपने साथ खिलाते थे। अब जो अभी का राइटर लिख रहे हैं कि अब जो हो गया है कि बहुत ज्यादा शोबाजी कि लोग बुफे भी लगाने लग जाते हैं। इवन मैंने भी 1-2 बार बुफे लगाया, बट दैट्स फॉर फंक्शंस। जैसे हमारे अब क्या हो गया है, खाली सत्संग सत्संग है, पर हमारा हर दिन सत्संग है, हमारा हर ओकेजन सत्संग है। तो उसमें क्या है, लाइक हमारी एनिवर्सरी है, या हमारा ये 9 अप्रैल का जो अंकल ने बोला गुरुजी उदयपुर गए थे, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको बुलाया जाए। अब इतने लोग जब आते हैं तो सम टाइम जगह भी कम पड़ती है, और उसके लिए हमको टेंट भी लगाने पड़ते हैं, और कई बार मतलब इस तरह करना पड़ता है कि सर्व करना भी मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे गुरु जी की आज्ञा हो रही है, ये बढ़ गया है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ, जैसे किसी को खुशी मिलती है संगत में, अगर उनको एक खाली दाल खिला के लंगर में खुशी मिलती है तो वो भी वेलकम है। अगर किसी को ये 4 चीजें खिला के खुशी मिलती है, वो उसकी खुशी है। मतलब हम लोग इस चीज में अब आके इस स्टेज पे जजमेंट नहीं कर सकते। ऑल्दो गुरु जी का लंगर जितना सिंपल रहे, वो ज्यादा हम एंजॉय करते हैं। लाइक घर में भी हम फील करते हैं कि एक सब्जी के साथ रोटी हो तो ज्यादा स्वाद लगती है। पर ये हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल बन गया है। ऑल्दो कोशिश करनी चाहिए जो राइटर के हिसाब से जितना सिंपल लंगर रखा जाए उतना अच्छा है। अब उन्होंने जो लिखा है कि देयर शुड नॉट बी वेस्टिंग ऑफ लंगर सर्व टू संगत। गुरुजी would not directly state that langar should be eaten to the last grain at it embodies his blessing. Sometimes a few beginners would avoid the langar, fearing it would be too spicy. Some of them would have their supper before coming for sangat and generally would hesitate to take langar at all. वो लोगों को था कि वहां मिर्ची वाला खाना मिलता है, पता नहीं वहां हमारी चॉइस का मिलेगा कि नहीं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, उस टाइम भी हर तरह की संगत थी, आज भी हर तरह की संगत है। पर ये हर किसी का अपना भाव है, हर किसी ने अपने हिसाब से गुरु जी को देखा। वो तो कहते हैं ना, भगवान है, अपने अपने भाव से हर कोई देख रहा है। लंगर है, उसको हर कोई अपने अपने भाव से देख रहा है। तो जो जिस भाव से खाएगा वो उसी भाव से उसके ब्लेसिंग्स है। तो हम भी पहले पहले हम लोग भी जैसे गुरु जी की बात करते थे, अब हमने धीरे धीरे सब ये छोड़ दिया, हमने गुरु जी पे छोड़ दिया है कि ये गुरु जी और उनके भगत का मसला है। दिस इज बिटवीन गुरु जी एंड गुरु जी संगत। अब गुरु जी ने अगर किसी को लंगर खिलाना है तो वो आदमी लास्ट बाइट तक खा के जाएगा, और अगर किसी ने नहीं खिलाना वो अपने घर ले जाएगा, उसके घर में वेस्टेज भी होगी या नहीं खाया जाएगा या बेकदरी होगी, ये तो उसके अपने भाग है। सो और तो जो राइटर लिखते हैं वो बिल्कुल ठीक लिखते हैं कि लास्ट तक लंगर खाना चाहिए। फिर भी अगर आपसे नहीं खाया जा रहा किसी रीजन से, एटलीस्ट उसको पैक करके घर, तभी गुरुजी कहते होते थे पैक करके अंकल नहीं दे दे। मतलब अगर कोई जैसे बीमार है किसी के घर में, तो हमको या किसी को भी ऑर्डर होता था कि लंगर पैक करके अंकल के लिए दे दो, कि उनको पता था वो आ नहीं सकते, तो उनको भी लंगर घर में पैक करके जाता था। अब भी अगर कोई पैक करके ले जाता है किसी अपने के लिए, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई ऐसे कोई गलत चीज समझनी चाहिए। अब जो राइटर लिखते हैं कि गुरुजी नेवर टोल्ड द डिवोटीज टू क्लीन द लंगर थाली बाय ईटिंग टिल द लास्ट ग्रेन, और
लिकिंग द लास्ट ड्रॉप ऑफ द दाल, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हम आजकल देख रहे हैं लंगर में, कि लोगों को लगता है कि लंगर है, ब्लेसिंग है, तो उसको शायद वो ऐसे करके एक एक चीज को ऐसे लिख करेंगे तो वो सारे ब्लेसिंग अंदर जाएंगे। गुरुजी ने ये कभी भी नहीं बोला। गुरुजी हमेशा एक, मैंने देखा, डेकोरम मेंटेन करते थे। उनको पता था चम्मच भी अलाउड थे, सब कुछ अलाउड था, और बड़े भाव से अगर आपने खा लिया और थोड़ा सा लगा भी रह गया तो गुरुजी टू नेवर से कि वो फिंगर से करके लिख किया जाए। ये राइटर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, आई थिंक सो। कुछ सेवादार, कुछ संगत जो आज ऐसे करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा हिंट है जो उनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदमी देख रहा होता है उसको कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती इससे। और हम लोग सारे, कई बार तो 4 लोग बैठे होते हैं या एटलीस्ट लाइन में बैठे होते हैं या आमने सामने होते हैं, तो इस चीज को जहां तक हो सके अवॉइड किया जाना चाहिए। नाउ वी कम टू चाय प्रसाद। लंगर और चाय प्रसाद, ये 2 चीजें थी जो गुरु जी का, जिसको हम कहते हैं ब्लेस्ड लंगर। आते ही जल प्रसाद मिलना है, वो तो होता ही है। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो सबसे पहले हम चाय पानी की देते हैं, कि कोई गर्मी में आया है, कोई है थका हुआ है, तो एटलीस्ट उसको सेटल करने के लिए पानी दिया जाता है, जो रॉयल अंकल ने भी लिखा है। तो चाय प्रसाद भी एक बहुत गुरु जी के लिए अहम चीज रही और आज भी है। चाय, चाय इज नॉट चाय, चाय इज चाय प्रसाद। वी कॉल चाय प्रसाद। इवन हम लोग इतने यूज टू हो गया कि अपने घर में भी कोई आता है तो चाय सर्व करते हैं तो वी से कि ये चाय प्रसाद है। गुरु जी ने चाय में कुछ ऐसा ब्लेस किया, चाय और समोसा, ये गुरु जी का एक स्टैंडर्ड होता था। और वो समोसे आज भी अगर किसी सत्संग में मिलते हैं तो हम कहते हैं जी समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद। अब चाय का मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करूंगी। ये सारा मैंने जो बुक में पढ़ा है वो तो है ही है, उसमें मैं थोड़े अपने इनपुट्स इसलिए दे रही हूँ कि चलो शायद हम लोग जो अब गुरु जी के साथ रहे हैं तो आने वाली संगत के लिए कुछ हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। गुरु जी ने हमको चाय का मसाला बनाना सिखाया। ये मसाला कहाँ बना, ये बना तेलंगाना। उस मसाले में उन्होंने 4-5 चीज ऐड करी। एक उसमें मोटी इलायची डालते थे, छोटी इलायची डालते थे, लौंग डालते थे, थोड़ी काली मिर्च डालते थे, थोड़ी सौंफ डालते थे। 5 चीजों को मोटा मोटा क्रश करके ही टू ऐड। अब ये बिलीव बिलीव यू, मेरे को आपका आंटी आपका नाम नहीं मालूम या जो भी, चलो whosoever is listening, आज भी हम वो मसाला बना के चाय सर्व होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरे को कई बार संगत जी में कई लोग बोलते हैं जी आप गुरु जी का लंगर बनाते थे, रेसिपीज लिख दो, ये लिख दो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मेरे को लगता है वो गुरु जी के लिए थी, गुरु जी ने सिखाया, गुरु जी को खिला दिया, अब मैं क्या लिखूं। फिर कई बार मेरे को लगता है अभी शायद, आज जैसे मैं चाय के मसाले की बात कर रही हूँ तो वो मसाला, चाय का पूरे वर्ल्ड में वही मसाला ऐड हो रहा है। तभी आप देखोगे कि पूरे दुनिया में आप कहीं चाय प्रसाद पियोगे आपको वही फ्लेवर मिलेगा। नॉट दैट कि वो मसाला ऐड होता है, नॉट बिकॉज गुरुजी ने चाय को चाय प्रसाद बना दिया है और पूरे वर्ल्ड में आपको चाय का एक ही स्वाद मिलेगा। ये है चाय प्रसाद की महिमा। सो आगे जो राइटर लिखते हैं, हाँ, उन्होंने जो लिखा कि one day after most of the Sangat had been given permission to leave, Guruji called me and asked, Rahul, संगत ਨੂੰ चाय पिलाओ, खुद बना के serve to the satsang by preparing it yourself. I never, I had never till then ventured into preparing tea. The reason being that none in the family is a tea drinker. अब अंकल लिख रहे हैं कि उनके घर में कोई चाय पीता नहीं था, उन्होंने कभी बनाई नहीं। और वैसे भी अंकल इतने बड़े अफसर, मेरे को नहीं लगता आंटी के रहते हुए कोई आंटी अलाउ करती है कि अंकल चाय बनाएं। या उर्वशी आंटी को मैं जितना जानती हूँ, शी इज सच अ स्वीट वाइफ एंड सच अ स्वीट पर्सन। पर अब गुरुजी का हुक्म था तो उन्होंने बनाई। तो समटाइम गुरुजी ऐसी चीजें आपसे करवाते थे कि जो आपने कभी करी नहीं होती थी। उसमें
और भी बड़ा कुछ है, मैं बता सकती हूँ, बट टाइम बीइंग कंस्ट्रेंट आई डोंट थिंक आई शुड गो इन दैट इलेबोरेट थिंग। गुरुजी ने जैसे अंकल को बोला, अब बिलीव यू संगत जी, इसमें भी कोई मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा जो उस दिन अंकल को गुरुजी ने चाय बनाने के लिए बोला। सो अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि उनको आता नहीं था, तो जोशी अंकल जानते थे कि शायद इनको चाय बनानी ना आती होगी, तो वो भी इनके पीछे पीछे गए। सो हम लोग ना, जितने भी सेवादार गुरुजी के आसपास होते थे, वो हम ना गुरुजी को देख रहे होते थे। फिर हमको लगता था कि अगर कोई आदमी कहीं फंस रहा है, तो दूसरा आदमी अपने आप हेल्प को उठ जाता था। तो ये एक गुरुजी की, जो गुरुजी ने एक परिवार बनाया, और परिवार में क्या होता है, एक एक यूनिटी होती है, एक मतलब होता है कि अगर कोई आदमी, हम जैसे आंखों का इशारा समझते हैं अपने परिवार में, तो ये वो चीज है जो अंकल ने बहुत सिंपल तरीके से हमको समझाया कि अगर फैमिली में एक आदमी के को एक चीज में दिक्कत आ रही है, तो ऑल ऑफ अस शुड कम टू द हेल्प। मैं इसको ऐसे ले रही हूँ। अंकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा हमको हिंट दिया है फॉर द फैमिली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब after the conclusion of one of those special functions in Bade Mandar, Guruji came back to the Empire State along with the few of the devotees. Dr. S.C. Sharma was one of the devotees who accompanied Guruji back to the Empire State. While Dr. Sharma was doing seva in the retiring room, Guruji asked him about the number of people who had langar at Bade Mandar on that day. Dr. Sharma applied his intelligence, stated it could be around 10,000. Guruji recorded saying, no, it's 2.5 lakhs. Believe you me, मैंने ये पोर्शन पीछे वाला पढ़ा ही नहीं था, जब गुरुजी ने स्किप करा दिया। और जो मैंने पहले बोला वो मैंने अपने उससे बोला, क्योंकि गुरुजी ने कई बार कहा था आज इतने लाख आदमी लंगर खा के गए हैं, आज इतने मतलब जो भी वो बोलते थे हमको समझ नहीं आती थी। लाइक एच.सी. शर्मा ने भी बोला 10,000, उसमें वो था कि कितने ऊपर से आसमान से सोल्स आई, लंगर खा के ब्लेस होके गई, जो हमने नहीं देखी पर गुरुजी को देखी। ये हमारे गुरुजी थे जो पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस कर रहे थे, चाहे वो इस दुनिया में हैं चाहे नहीं है, या आने वाली जनरेशन है या पिछली जनरेशन है जिनको हम शायद नहीं मिले। तो ये हमारे गुरुजी का जो था एक तरीका था पूरे यूनिवर्स को ब्लेस करने का, जो वो आज भी कर रहे हैं। सो अगर अब he concludes by saying Guruji's Langar epitomizes spiritual progress by incorporating the divine blessings of the enlightened Guru, annihilating the ego of the individual devotees. Simultaneously, it fosters social equity, cohesion, fellowship, sense of seva, universal brotherhood among the devotees and others who are blessed to have Guruji ka langar. ये एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट शुरू किया कि 4 लोग इकट्ठे खाएंगे, 4 लोगों में ये नहीं कि यू कैन पिक एंड चूज कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा भाई है, हम ये खाएंगे। नो, जो लाइन में क्यू में जो आ रहा है, 4 लोग बैठा रहे हैं, ये वो। इसका मैं आपको एक सत्संग छोटा सा सुनाऊंगी, एंड आई थिंक उसके बाद मैं भी कंक्लूड करूंगी। एक बार स्टेट की बात, गुरुजी ऐसे लाइनों में बैठा रहे हैं और 4-4 लोगों का लंगर आ रहा है। एक आंटी जो शायद कोई बहुत अच्छी फैमिली की होगी, जरूर अच्छी फैमिली की होगी, वो गुरुजी के पैर दबा रही थी। तो गुरुजी ने 2-3 बार कहा कि लंगर कर लो, तो वो आंटी उठ ही नहीं रही थी। उसको लगा कि ये 4-4 लोग हैं, मेरे को पता नहीं किसके साथ बैठाएंगे। तो होता है ना भी, चम्मच तो चार और 4 स्पून है, पर चम्मच शेयर तो हो रहे हैं, दाल सब्जी तो वही है। वो उठ नहीं रही थी, हम भी देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब सबने लंगर कर लिया, तो आंटी को गुरुजी कहते हैं किसके साथ आई है, खुद गाड़ी चला के आई है? कहती नहीं गुरुजी, ड्राइवर दे नाल आई है। ते कहते अच्छा। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ड्राइवर ਨੂੰ बुलाओ। ਉਹਦਾ ड्राइवर आया, गुरु जी ने 2 की थाली लगवाई उसको, उसके ड्राइवर के साथ बैठ के बोलते अब तू लंगर कर। वो मना नहीं कर पाई क्योंकि गुरु जी का हुक्म था और सब लोग थे। इस तरह गुरु जी ने ये जो एक
बड़े छोटे का फर्क, जो हैव्स एंड हैव नॉट्स, और जो मतलब हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, हर लोगों का फर्क खत्म किया, तो आज हम जो पूरे वर्ल्ड में गुरु जी का एक परिवार बने हुए हैं, जो हम उसी, वही लंगर हम खाते हैं, वही हमारे घर खाते हैं, वही हमारे हेल्प खाते हैं, और किसके साथ हमारी 2 की थाली आनी है, 4 की आनी है, वी कांट पिक एंड चूज। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एंड आई पर्सनली एम थैंकफुल टू डॉक्टर रॉन रॉन अंकल, जिनको राहुल अंकल गुरुजी बोलते थे। आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने अपनी बुक में इतना कुछ कवर किया है कि शायद मेरे को नहीं लगता कि मतलब पॉसिबल होता है एक आदमी के लिए इतना लिटरेचर गुरुजी के बारे में या उनके बारे में इकट्ठा करना और लिखना, और आज उसको हम पूरे वर्ल्ड में जैसे हम बता रहे हैं। So I'm so thankful to Dr. Raul, this multilingual team, and our Guruji, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि हम आज एक परिवार की तरह बात कर रहे हैं, परिवार की तरह मिलते हैं, परिवार की तरह एक दूसरे के दुख सुख में खड़े भी होते हैं। सो आई एम सो थैंकफुल। शुक्राना गुरुजी, जय गुरु जी। और अगर कोई कोई मेरे से मिस्टेक हो गई बोलने में, समझने में, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट टू एवरीबॉडी। थैंक यू। जय गुरु जी। Shukrana Guruji Maharaj ka auntie. You elucidated the points very, very well. Thank you so much, auntie. Over to you, Nikki auntie. Jai Guruji, and Hey, thank you, Guruji. Jai Guruji. Thank you for having me back on this platform, and a very, very, I would just say a warm Jai Guruji to everyone. Raul uncle, auntie, Kiran auntie, and all the Sangat who's here. It's I think every time you come and you do Guruji satsang on any platform, it is an absolute overwhelming moment and time, because it's a huge blessing, because you get to relive all those moments that you've spent with Guruji, talking about all the intricate things that defined him. Today, the entire satsang has been on Langar Prasad, which I think and I feel and we all know as a fact is one of the most important aspects of following Guruji and following his shown path and following those 4-5 things that he has always talked about and has always taught us to respect it and to adhere to it in every possible manner. And having seen how this whole thing started right from Jalandhar in 1992 till today, there has been so much learning and so much appreciation and so much gratitude that this Langar Prasad has been one of the biggest reasons for so much blessings in life, which I will try and put it down as much as I can. We know that the Langar Prasad started so many years back. It was there in Sikhism. It was there in so many other realms of spirituality. And there are these huge temples and huge religious places in India, in abroad, where actually the prasad is given in so many different ways. For example, like Raul uncle has actually mentioned about the Jagannath temple, Odisha, where the prasad is first, it is cooked and served to devotees, and it is actually sold to the devotees. The point of this is that the prasad is held at such a high value level that people are ready to even buy it. And they believe that that prasad gives them so much of blessings. And that is why they go all out to, get it. And our Guruji, our Guruji has made it so simple and so easy and so easily accessible to everyone who comes to him, that sometimes we forget that we forget its maryada, we forget how much a big thing it is.
everywhere we go, there are lines and lines. When you hear about all these religious places on this in India and otherwise, there are lines to get prasad. And today, when when you can get it so easily, so freely, we tend to not understand its importance. And that is why it is absolutely fantastic and wonderful that we have these kind of platforms where we can just reiterate and we can हम सिर्फ बार बार ये याद कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये गुरुजी की ही दिखाई गई और सिखाई गई चीजें हैं, जो हम जितना कोशिश कर सके हम इसको आगे अपने आगे की जनरेशंस और आगे जो भी लोग आ रहे हैं उनकी तरफ हम इसको बता सकें कि इस तरीके से गुरुजी ने ये चीजें सिखाई हैं. आगे ऑफ कोर्स it's left to be seen how Guruji takes everybody forward and how Guruji ensures the Sangat moves forward. But we also have a duty. We are Guruji's Sangat for a reason. We have watched, seen things for a reason. And that reason is to spread the right message ahead so that at least we are able to pass on, the ways that Guruji showed us. And I think it is every Sangat's, should be every Sangat's endeavor to spread this message around. And somewhere down the line, everybody has had his or her or own experiences related to today, particularly talking about Langar Prasad. Everybody has had. Raul uncle has been instrumental in, serving Langar Prasad in Empire Estate. Kiran auntie was instrumental in making the Langar Prasad for Guruji in Chandigarh. My mother was one of the chosen few people to make Langar Prasad in the Bada Mandir when it was being served in Empire Estate. She was a group of 4-5 ladies who were picked up, and she used to cook the Langar Prasad there and used to be sent. Having said that, this is only to reiterate the fact that there are chosen people and chosen Sangat by Guruji who were handpicked to do this kind of a seva. And it should never ever be taken lightly or taken for granted, because not everybody got that opportunity to do it. So the fact that अगर आपको ये मौका दिया इस सेवा के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सेवा मिल भी नहीं सकती अगर गुरुजी ना चाहें. जब मैं गुरुजी के पास गई थी at the age of 11 in Jalandhar, and I remember at that time, in that innocence, imagine at the age of 12 or 13 years, Guruji taught me how to make chai prasad for the Sangat in Jalandhar. And I used to just be standing very innocently at the gas and Guruji said, चल जाके chai prasad बना. वहां पे जब कोई ना ज्यादा एक टाइम पे संगत होती थी, 3 या 4 लोग होते थे, कभी 5, कभी संगत लग जाती थी, धीरे धीरे संगत लगने शुरू हुई. तो फिर my mother was there in the making the chai prasad, and it passed on to the elders. Point is कि उस दिन के लिए भी, उन दिनों के लिए भी, उन महीनों के लिए भी, it is such a divine feeling that little opportunity that we got to understand and to do things as Guruji wanted is huge. It's tremendous, because we have read, we are reading, we come across thousands and thousands of examples which are being shared by the Sangat all over the world, how the Langar Prasad has been instrumental in curing people of ailments or problems which are beyond medical cure. So you imagine कि एक ऐसे simple से तरीके से अगर हमारा इतना सब कुछ ठीक हो सकता है या हम इतने एलिवेट हो सकते हैं, तो उसका मान रखना कितना कितना जरूरी है. Where at Guruji's time, when Guruji used to be there in when he was there in his physical form, and now of course the satsangs have become there are so many satsangs that are happening all over the world, but it is very very important that हम ये हमारी
मैंने ये देखा है कि कभी कभी एक संगत 3-4 सत्संग एक दिन में अटेंड कर रहे हैं एंड देन दे आर लाइक, एक संगत एक सत्संग में जाते हैं, यहाँ नहीं लंगर खाएंगे, अगले सत्संग में खाएंगे। नाउ ये जो पूरा का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो आपके ऊपर है। एज अ संगत यू नीड टू डिसाइड वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू। बट व्हेन यू गो टू अ सत्संग, complete the entire process of that satsang. Finish the langar prasad, finish what is given over there, and don't think about what is there in the langar that day. जब गुरुजी के साथ बैठे, हमने आज तक जिंदगी में नहीं सोचा, और हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि गुरुजी जो लंगर प्रसाद जो बनता था वो तीखा होता था, मिर्ची होती थी, मीठा इतना था। हलवा प्रसाद गुरुजी के खुद के हाथों से मिलता था, हम तरसते थे टू गेट दैट काइंड ऑफ प्रसाद। तो आज भी अगर जब हमें प्रसाद कहीं भी मिलता है, हमें भाव तो वही रखने पड़ेंगे। हम ये टू सी कि कौन प्रिपेयर कर रहा है लंगर प्रसाद, कहाँ से आ रहा है, इस लंगर प्रसाद बहुत ज्यादा है, आज पूरी मिल गई, आज ज्यादा हो गया। अगर हमने इस भाव से खाना शुरू किया तो वो हमारी सारी की सारी ब्लेसिंग्स वहीं पे खत्म। तो वो हमारे ऊपर है। आज अगर हमारा मन, अगर हमें नहीं जाना किसी सत्संग में, इट्स आवर चॉइस, बट इफ यू डू गो देन यू नीड टू कंप्लीट the entire process as Guruji taught. And we know for a fact that in Jalandhar, Guruji, used to serve, abhi auntie ne bhi bataya how Guruji used to take the rotis and he used to literally put them in people's plates. And we used to, because we were staying there in Jalandhar and we were there day in and day out, हम तरसते थे कि गुरुजी के हाथों से और मिल जाए। एक इतनी खुशी मिलती थी जब गुरुजी से एक एक्स्ट्रा रोटी मिल जाती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड, आई वाज 12 years, and I absolutely loved the fact when we would get that little extra jal prasad, जब गुरुजी रुद्राक्ष माला डालते थे, और that extra cup of chai prasad, or that extra cup, extra roti, or the little extra langar. When Guruji used to keep us after the hours of normal sangat and we used to again have langar prasad, we used to again have it. Sometimes it used to be paranthas, sometimes it used to be heavy food, sometimes it used to be samosas. Not once, and it's a fact, not once did it cross our mind कि oh my god ये दोबारा मिलेगा, ये कैसे जाएगा अंदर। और ये भाव देने के लिए गुरुजी का शुक्र, क्योंकि it is a normal human reaction to think and to feel कि how are we going to eat so much. But every time जो भाव आया मन में और दिल में, वो यही था कि oh my god, it is truly a huge blessing to receive this langar prasad again. बिकॉज एक एक जो हमने खाया, एक एक जो हमने निवाला, जो लंगर प्रसाद का खाया, वो इसी भाव से खाया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इस भाव से भी नहीं खाया कि हाँ ये खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं, वो गुरुजी के ऊपर है। बट हाँ, ये इस भाव से जरूर खाया कि जो एक एक जो गुरुजी ने जो भी दिया, जो आज भी दे रहे हैं, जो खिला रहे हैं, जो पिला रहे हैं गुरुजी, वो गुरुजी की ही मर्जी से है, वो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। आई डोंट नो, हम लोगों ने आज भी ये सारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आज भी हम फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने करा है। कभी कभी हम बैठे होते हैं कोई सत्संग में और बहुत तलब होती है कि एक चाय प्रसाद और मिल जाए, और वो कहीं ना कहीं से आ जाती है चाय प्रसाद। Isn't it a tremendous feeling that we get? We know that Guruji is listening to each and every small thing. चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद जो भी हम खाते हैं, वही चीज अगर हम नॉर्मली खाना चाहें उसका कोई स्वाद नहीं आता। बट जब वही चीज को हम लंगर प्रसाद में खाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। तो वो भाव अपने अंदर डिवेलप करना, वो फीलिंग अपने अंदर डिवेलप करना कि वो सच में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव सो मेनी सत्संग्स ऑन YouTube, we have so many satsangs in books, we have so many sangat, which is again and again talking about the maryada and the greatness of all of these things. It is for this, ताकि वो जो भाव है वो सच्चा रहे, वो प्योर रहे। और एक लंगर प्रसाद
एक गुरुजी का एक वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स था, वन ऑफ द बिगेस्ट वेज था, वन ऑफ द बिगेस्ट तरीकास था टू ब्लेस हिज संगत. So we at no point in our life should we have any thought that diverts us from this thought process. गुरुजी ने सिखाया था कि जो सारा का सारा जो लंगर प्रसाद है वो वहीं पे बैठ के खाना है, वो घर नहीं लेके जाना. तो आज जब हम जाते हैं, हम सत्संग में जाते हैं, हमें लगता है हम लेट हो रहे हैं, हम पैक करके ले जाएं. आप ये कितने लोगों ने और कितने तरीकों से हमें ये समझाया गया है कि वो लंगर प्रसाद नहीं है. जब वो उस दरबार से बाहर निकलता है तो वो लंगर प्रसाद नहीं है. फिर भी अगर हम नहीं समझते, फिर दैट इज आवर फॉली, दैट इज वी आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू टेल अस. कितनी तरीकों से ये एक एक संगत को अब पता होगा कि सारा राइट टिल द लास्ट बाइट हमने गुरुजी के वहां पे ही खत्म करना है. We should not take it home, but at the same time, there is no hard dogmatic rules that were laid down by Guruji कि मतलब पूरा ही प्लेट को वो ऐसे खत्म करना है, और वो सब नहीं था. बट हाँ, you cannot waste it, you should not waste it. Finish the langar prasad completely. And जैसे अभी भी हमने सुना है कि Guruji used to make us sit with people we did not even know about, which was why. There is a reason for everything. There was a reason कि Guruji हमें randomly किसी के साथ भी बिठा देते थे. Why? Because at the end of it, गुरुजी ने सिखाया है कि जब गुरुजी की संगत जब गुरुजी के पास आती है, हम सोशल कनेक्शंस बनाने के लिए नहीं आते. हम ये जानने के लिए नहीं आते कि मेरा इसके से काम बन जाएगा या मेरा उससे काम बन जाएगा. When we are at Guruji's Darbar, we are all equal. Whatever we are all equal. And we should know only two languages among the Sangat, which is love and compassion for each other. That is the most important thing. And we should unite in our faith towards Guruji. That is the uniting factor. That is the factor which should connect each one of us. There is no other reason that Guruji taught us. I have grown up, I have lived my childhood, my middle age, my gotten married, be now at this age. I have seen all these phases of life with Guruji. But Guruji is stuck by these 2-3 things. कि जब आप गुरुजी के पास आते हो और जब गुरुजी रैंडम लोगों को बिठा के जब लंगर प्रसाद खिलाते थे, तो we are above caste, we are above egos, we are above all of this. At Guruji's Darbar, we are all one, and we need to, have the Langar Prasad with that feeling. But at the same time, there needs to be a lot of love and a lot of compassion. And we don't know what the reasons are कि गुरुजी किसको किसके साथ बिठाते थे, या क्या होता था, या क्या उसके पीछे रीजंस थे. कभी जानने की कोशिश नहीं करी. ये गुरुजी के अपने और अपने तरीके होते थे. So it is so important to understand that the langar prasad, the chai prasad, these are all embodiments of his blessings, and they have to be consumed fully, sitting in front of him. Fasting, आजकल फास्टिंग उस मतलब गुरुजी के होते हुए नवरात्रे, all these things, nothing was of importance because we were sitting in front of the Lord himself, if sitting in front of God. वहां पे क्या लहसुन, क्या garlic, क्या onion, nothing like that had its place. So even if you feel that you cannot or you don't want to have a certain thing, then it is better to avoid going to a satsang. But if you are in a satsang, then you should completely have the langar prasad without thinking what the langar prasad contains. And it was very important because ये हर संगत के साथ गुरुजी की अपनी डीलिंग थी. गुरुजी ने हर वहम, हर चीजों से बहुत ऊपर रखा. कभी भी कुछ नहीं ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स ऐसे किसी के लिए नहीं थे अबाउट फास्टिंग एंड ऑल. बट इंडिविजुअली गुरुजी कभी कभी कोई चीज एक इंडिविजुअल को अपने उपाय के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कहते थे. मेरी मदर को भी कुछ कहा था, इंडिविजुअली कहा था, और बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा था कुछ फास्ट के लिए. बट
जब गुरुजी के पास आते थे तो गुरुजी ने बहुत क्लियरली, गुरुजी के शब्द होते थे कि कोई वहम नहीं करना, ते जब इत्थे आए हो मेरे पास तब पूरा लंगर प्रसाद ऐसे ग्रहण करो बिना सोचे, टमाटर है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ये गुरुजी के क्लियर कट वर्ड्स थे। So this is something which we need to understand because we are confusing things in life. Guruji's ways were very simple. There were clear-cut methods, there were clear-cut instructions. और अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी कोई कोई इच्छा है कि आज we don't want to consume a certain thing, then it is better to avoid. But avoid going only to a satsang. But when you are there, I think you need to give it full honor. क्योंकि जहां पे भी सत्संग होता है बड़े भाव से लोग सत्संग करते हैं, बड़े भाव से लोग कोशिश करते हैं कि वो सत्संग उस भाव से करें, तो वो प्रसाद भी एक गुरु जी का ही भाव है। वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसके घर में सत्संग हो रहा है और क्या लंगर प्रसाद बना रहा है। वहां पे ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि वो गुरु जी का सत्संग है। आपको गुरु जी के सत्संग में आपको पहुंचने का एक जरिया मिला है, तो वो गुरु जी का ही लंगर प्रसाद है। And it is important to have all of this because we know that all the blessings have happened through this. I was cured immensely through the Langar Prasad when I was in a situation or state where none of the medicines, I mean, Guruji told me to be off medicines in my situation, in my case, and all that worked and everything that worked was Guruji ki, being in Guruji's grace, being in Guruji's fold, being with him, getting his blessings through the Langar Prasad, immense blessings through that. तो इस चीज को हम कभी ना भूलें, कभी जिंदगी में ना भूलें. And he has taught us so many things about life. Like I said, ego, social, religious, all these concepts are just removed completely by having Langar Prasad in absolute एक बोलते हैं एक निर्मल भाव से, एक humility के साथ. And he's also taught us universal brotherhood that Raul uncle has also mentioned in the book very nicely, that how a universal brotherhood is elevated, how you become one, you become like a one, you become, I don't know, like Guruji Sangat through these methods, through these things. And it's not only about having the Langar Prasad, it is also about the Sevadars who serve the Langar Prasad. I mean, they are also Guruji's chosen ones who have this opportunity or who have been given this opportunity by Guruji to serve the Langar. Of course, at every level, whether it was Jalandhar or whether it was Empire Estate, Guruji had his own, Sevadars who he picked, who he chose to serve the Langar Prasad, which was also a blessing for the Sevadars, and they were the chosen ones by Guruji. And a lot of names that Uncle has written. Uncle himself served in Empire Estate along with Joshi Uncle and Singla Uncle and Preeti Auntie, Bhatia Auntie in Jalandhar, and Gopal Uncle, Senis, DJ Auntie, my mother, RP Singla in Empire State in Bada Mandir. So these are all people who have been picked up and chosen by Guruji, and we should never ever forget all these blessings. So even today, if we are getting a seva to do or to hold a satsang at home, or to make Langar Prasad, then it should truly be done with that bhav that you have been given this or assigned this seva by Guruji. And very beautifully, Uncle has again explained about the leftover langar. जब गुरुजी साक्षात रूप में थे, तो जो हमारा जो लेफ्टओवर लंगर होता था, गुरुजी कभी खुद ही बोलते थे कि जो लोग गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाते थे, तो गुरुजी कहते थे कि ये लंगर प्रसाद जाके ते उन्नु दे दे, या कोई घर से नहीं आ पाता था तो गुरुजी खुद कहते थे कि उन्नु जाके दे दे. These are all Guruji's ways. That is why the leftover prasad and leftover langar should also be treated with utmost respect. And it was always had without reheating it, because that was the whole essence of the langar prasad, that it had to be had in the way it was given. And
even while eating the langar prasad, there should be no negative thoughts. Like I said before, it should be had with a completely free and a completely pure mind, only focusing on Guruji with no rigidity, with no negative thoughts, with no calculations, nothing. It should be just had with absolute purity. Guruji ka jo chai prasad tha, that was so symbolic. And the way it was served and how it was a set pattern of the chai prasad being given and served to everyone was symbolic. And it is truly a blessing that the chai prasad that we received with in Guruji's presence, and even now that the chai prasad that we get in the satsangs is I feel that it just does something to you at a very deep level and a very internal level, and we crave for it. That same chai prasad, or the same chai, or the same way that you try and make the chai at home during not a satsang time, or not with the sangat, is tastes very different. It feels very different. But when it is had in that ambience of a satsang with Guruji's name being taken, it absolutely feels absolutely divine. And this is a feeling which needs to be developed from within if you put your entire faith on the Langar Prasad. Now, this Langar Prasad acting works at multiple levels. Of course, I would say it is one of the most blessed foods, or blessed food, or meal that we can get in a day. The Langar Prasad is made, or has been made, or even today it is only even in satsangs it is being made by Guruji's hukum, indirectly, directly, whatever it is, but it is being directed by Guruji. Otherwise, a Langar Prasad cannot be made. And however you are involved in the Langar Prasad, whether directly or indirectly, it truly is a blessing. The Langar Prasad obviously carries a lot of spiritual vibrations, and those vibrations should be felt when you are having the Langar Prasad. Don't have it just by not putting any feelings in it, but have it feeling those vibrations. And all the components of the Langar Prasad, like Guruji had given and taught us, ki there was one simple dal, one simple sabzi, one simple roti prasad, yes, whatever simplicity that Guruji showed, all the reasons for that are absolutely very symbolic. The Langar Prasad obviously carried all his spiritual blessings, and they were a big relief from problems, from medical problems. They worked in healing incurable diseases. One more thing that the Langar Prasad did at a very deep level, which we fail to recognize, जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता या हमें फील नहीं होता है कि आपकी जो लंगर प्रसाद है वो आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करता है एट अ वेरी डीप लेवल। आपके कर्म भी साफ करता है। लंगर प्रसाद से कितना कुछ होता है। आपकी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, आपकी सोल, आपके कर्म भी उसमें ही ट्रांसफॉर्म होते हैं, धुल जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। यू बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग। सो इट वर्क्स इवन एट योर intricate level, even at your mental level. Langar Prasad is also so important to receive a lot of peace internally, to give you a lot of calmness, to give you a lot of divine connection, lot of assurance, lot of trust. And all these things, imagine you're deriving through Langar Prasad, but if it is had with that bhav, if it is taken with that bhav, without any ifs and buts, without any calculations. Little things are subject to change. Yes, we are living in an evolving time. Sangat is evolving, but the root things that Guruji had taught us, the root ways, and जो आपके हार्ड कोर जो तरीके जो गुरुजी ने हमें सिखाए हैं, वो तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो उसी तरीके से ये आगे भी चीजें उसी तरीके से चले।
क्योंकि वही तो गुरुजी का एसेंस है। हर जगह एक रिचुअल्स होते हैं, एक तरीका होता है, तो गुरुजी ने भी सिखाए हैं, सबको पता है, सबको मालूम है। कोशिश यही होनी चाहिए कि वो सारी की सारी चीजें उसी तरीके से चलें जो इतनी ब्यूटीफुली इस बुक में राहुल अंकल ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करा है। एंड इट इज अ ड्यूटी टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर डन and to kind of at least try to abide by it, to put a bhav in it, to savor the Langar Prasad with absolute, surrender, and understand that it works at levels that you can't even imagine. So just don't think about it, don't put your calculations, don't do anything, because आज तो हम बहुत blessed हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है to hear about people getting cured through the Langar Prasad, diabetic people getting cured by having so many sweets at Guruji's Darbar. Uh, you know, uh, People with heart conditions getting cured by eating food that is so high in oil or cholesterol. So there are gut issues getting resolved by eating, by having wheat or by having things which can actually are not very correct for the gut at that time. So there is no, Guruji कहते थे कि science fail, तभी गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू। तो डोंट पुट योर साइंस, डोंट पुट योर प्रैक्टिकलिटी, डोंट पुट योर कैलकुलेशंस इन place when you are actually having the Langar Prasad, whichever part of the world you are in, whichever satsang you are in whosever place, house, mandir, wherever you are in, you are there because Guruji has wanted you there, and Guruji has made sure that you reach there. So your focus and your attention should be only and only towards Guruji and the Langar Prasad. दिल से गुरुजी का शुक्र करें हम कि वो लंगर प्रसाद ग्रहण करने का एक मौका मिला है, और उसको उसी भाव से खाएं जैसे हम सोच के चलें कि गुरुजी सामने बैठे हैं हमारे और हमको ये मौका मिल रहा है उस लंगर प्रसाद को ग्रहण करने के। सारी की सारी और चीजें हम बिल्कुल उसको साइड पे कर दें, क्योंकि हम this is not a social gathering. The satsangs are not social gatherings. They are purely done to remember Guruji and to carry on all the things that he taught us. I hope I have summarized everything as best as I can. And thank you once again, Uncle, for bringing this aspect out so beautifully. Jai Guruji. जय गुरु जी। गुरु जी को Thank कोटि you. कोटि प्रणाम, सारे आए हुए संगत को भी प्रणाम। आज बड़े अच्छे तरीके से संगत ये जो लंगर तत्व बारे में किरण सूद आंटी और निकी मल्होत्रा ने बताए। निकी आज जब ये बुक रीडिंग का सत्संग शुरू हुई तो एक बहुत सा अच्छा सा एक शब्द लगाया गया था, वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो निकी भी अपने तरीके से बताई कि when we are doing the satsang today and we are talking about langar, we are reliving the moments we have spent with the Guruji. That is a beautiful way of describing what we were talking today. Kiran Sud auntie, Nikki, both of them, Nikki's family, Kiran Sud's family, and of course my family, we were there since Jalandhar days till Guruji left his chola. Those are the beautiful moments, and most of the beautiful moments are related to Langar Prasad and Chai Prasad. So the way both of them have described, interestingly, that we now relive the same scenes, the same scenario from those days till the end. So that is what is the essence, what we have learned from this chapter and what both of them they have described. Coming back to the beautiful journey of Guruji,
the Guru Mahapurush's journey was beautiful, and everybody who has come to Guru's Saran, they have enjoyed, they have lived through those beautiful moments. So this book is an attempt to capture some of them. We cannot say it is a comprehensive book or it is an exhaustive book. That's the reason a lot of the names, the people who are associated in langar making or langar serving has not been incorporated in the book because my information is limited, my knowledge is also limited. Like it was glad to know that in Chandigarh, like Kiran Sud aunty बताई कि वो खुद गुरु जी के जो लंगर प्रसाद बनाती थी गुरु जी के लिए, संगत के लिए तो बनता था वो अलग चीज है, बट गुरु जी के लिए जो लंगर प्रसाद वो खुद बनाती थी, जो कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, बट समहाउ किताब लिखने के वक्त ये इंफॉर्मेशन छूट गई. और एक इंफॉर्मेशन भी किरण सूद की जो इंट्रोडक्शन में दिया गया कि गुरुजी when he left sector 33 Chandigarh and came to Empire State, before that he spent considerable time in Kiran Sood's and his house in sector 21 Chandigarh. This part also has been missed out in the book. Again I say, I also apologize to the people whose names has not been included. गुरुजी भी माफ करें, क्योंकि ये अटेम्प्ट नहीं है कि एक कंप्रहेंसिव और एग्जॉस्टिव बुक गुरुजी के बारे में और गुरुजी के लाइफ हिस्ट्री में और उनके जो फॉलोअर थे, क्लोज नियर बाय थे, उनके बारे में लिखने का ये प्रयास नहीं किया गया था. ये प्रयास किया गया था कि गुरुजी के बारे में कुछ उनके स्पिरिचुअलिटी के बारे में through his life history and the way he was conducting himself, holding the sangat, serving langar prasad, उसी के थ्रू, उसके माध्यम में जानने की कोशिश किया गया है. So I say this is a limited book. It has its own limitations. So like Nikki also said, her mother was also involved in serving langar in Empire State. I knew that, but somehow it has slipped out of my mind while writing the book. So what I suggest, effort should be made to write a comprehensive biography and life history of Guruji and the Sangat who are closely associated. I'll come back toward the later part of my this discussion. These are required because those people, why, like Nikki told, and also Kiran Sood auntie also, she told, and it has been written in this chapter, why certain people are allowed to perform those duties. You can say they are lucky, they are blessed. Yes, they are blessed, but there must be something. Some people, they try to get into the system of langar seva. But sometimes गुरु से हले रहने दो, इसका मतलब है गुरु जी जाने. We don't ascribe any motivation to that, but it is a fact that the way you perform the seva, your intention, your sincerity, your bhav, all that matters. So that is what Guruji, he knows everything. He knows your mind, he knows your intention, your motivation, everything. So accordingly, he allows you to perform some seva. हम इस चैप्टर में कोशिश किए हैं कि गुरुजी के जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, उसके बारे में डिस्कस किए हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम जालंधर से लेके एम्पायर स्टेट तक और बड़े मंदिर तक भी. और उस माध्यम में हम कोशिश किए हैं कि जो फूड और लंगर, फूड प्रसाद लंगर, दीज आर कंटिन्यूम्स. हम कोशिश किए हैं इस चैप्टर में कि लंगर प्रसाद गुरु जी का तो है ही है. ब्यूटिफुली निकी हैज टोल्ड अबाउट इट, दैट it has its own importance.
But can we go beyond the Guruji Sangat system and Langar Prasad to the rest of our life? How to treat food? That is what also we have tried to. And what takeaways we have, like universal brotherhood, annihilation of the ego. There is no distinction between individuals on the basis of caste, creed, religion, or anything else. What the kind of differences or stratifications we generally talk about in the society. तो गुरु जी के सामने सारे एक जैसे थे, गुरु जी एक जैसे सारे को ट्रीट करते थे, और गुरु जी वो भाव, वो kind of spirit he was trying to inculcate in us. So that is the important thing. And when we take food, then prasad, then langar prasad, as a continuum, we also learn how we also choose our food, how to prepare our food, how to treat food, and how to feel grateful to God that He has given us an opportunity to earn our sustenance through right means, and also share with the rest of the world. Langar Prasad means sharing. You have to learn these important spiritual connotations from Guruji's system. Now coming back to Langar Seva, again, I know Urvashi was also involved in Langar Seva in Panchkula and Chandigarh. But again, that slipped out of my mind. Similarly, in Empire State, apart from Nikki's mother, Gopal uncle was also involved in Seva. And also BP uncle also was involved. So that's why I said, if some effort can be made to have a comprehensive and exhaustive biography of Guruji and his life history, as well as the Sangat who were involved in different kind of seva, that will be definitely an honor, and that will be also seva to Guruji. Those kind of efforts should be made. Any platform, any organization, they can do it. I made a little effort, whatever, to bring certain things to the fold of to the Sangha, to the general public about Guruji. So there may be limitations in the book. So that has to be understood. There are informal Langars during Guruji's time. We all talk about formal Langars, institutionalized Langars. What are the informal Langars? Like in Jalandhar, anybody could come to Guruji's place anytime. और वहाँ चलता था, अगर it is a langar prasad, it was throughout the day, chai prasad or any other prasad like that. Then there are like in Empire State or even in Panchkula and Chandigarh, when most of the people will be allowed to leave, take permission to leave, then there will be Guruji will say will allow some people to stay late. Even that is a considerable number, 15, 22, 25 sometimes. And the second round of langar, if there is not there sufficient surplus langar, then Guruji will say, paratha banao. So there are other ways of Guruji's way of serving also informal langar. So people who are in the front line, they were serving langar. But behind the preparation of langar, like in Bade Mandir with his Singla uncle, many other aunties and uncles, they were helping for preparation of langar. We don't know those things. These names are not there. Like Kiran Shudanti said, that people were at the background. Many people were in the background. So those people should be identified, and their contribution, their seva should also be highlighted.
So, what is the takeaway from this chapter? The takeaway has been also read out by Kiran Sudanti, the last paragraph of the chapter. That I again reiterate. Guruji's langar epitomizes spiritual progress by incorporating the divine blessings of the enlightened Guru, annihilating the ego of individual devotees. Simultaneously, it fosters social equity, cohesion, fellowship, sense of seva, and universal brotherhood among the devotees and others who are blessed to have Guruji ka langar. So that is the essence of this chapter. In addition, I said food, prasad, and langar, they are a part of a continuum. Treat your food, what you are preparing, also like prasad. You may, as the practice in our olden days, and many people also follow these days, before eating your prasad, you feel grateful to God, express your gratitude to God before taking the food, then that becomes prasad. And if you can, you share a little bit of your earnings with others so that they can also have sustenance in the form of food and other things. Jai Guruji. Anantam Shukrana Guruji Maharaj. A beautiful, beautiful session. We are really, really as Sangat overwhelmed. Raul Uncle, such a beautiful session, beautifully read and elucidated by Kiran Auntie. And as an interventionist, Nikki Auntie, you did a wonderful job. Thank you so much telling us about the essence of Langar Tattva, universal brotherhood. Very, very well articulated and very eloquently elucidated by Kiran Sood Auntie and Nikki Auntie. Thank you so much. Thank you so much. On behalf of Vasan Uncle and multilingual team, I thank everyone. Nantam Shukrana. Thank you so much. Thank you so much, Rahul Uncle. And I'm sure in this coming times and for the future generation, it's actually injustice to call this a book. This is a granth. It's like a scripture which you as old Sangat would be leaving for the coming generation. Thank you so much. Thank you so much. On behalf of Vasan Uncle, thank you so much once again. Jai Jai Guruji Jai, Maharaj. Jai Guru. Jai Guruji. Anantam Shukrana. Jai Guruji. We can take Agya now, Sangat ji. जय गुरु जी।